अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज जिशान बशीर, वेलकम टू AA इंटरनेशनल पब्लिशर्स। आज हम सॉर्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज को। देखते हैं कि एक्सरसाइज में क्या है। दिस इज फ्रॉम यूनिट नंबर 3 बुक 4। एक्सरसाइज में क्या कंपोनेंट्स डिस्कस किए गए हैं, आइए इसको सॉर्ट आउट करते हैं। लेट्स डू इट। जी तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ टर्न टू पेज 19। देखते हैं कि यूनिट 3 की जो एक्सरसाइज है उसमें क्या कंपोनेंट्स हैं। सो फर्स्ट पोर्शन इज रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। आंसर द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टेंट पेगिंग गेम, यानी कि टेंट पेगिंग गेम क्या है, डिस्क्राइब इन डिटेल। तो देखते हैं कि टेंट पेगिंग गेम क्या है। Tent pegging, a mounted cavalry sport where riders use a lance or a sword, pick up and carry a small ground target. Dear students, टेंट पैगिंग एक ऐसी गेम है जिसके अंदर जो घुड़सवार है वो जमीन पे लगी हुई कील को या मीख को किसी तलवार या किसी स्टिक के साथ उखाड़ता है। सेकेंड क्वेश्चन, राइट सम एक्टिविटीज ऑफ हॉर्स एंड कैटल शो ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में हॉर्स एंड कैटल शो की कुछ एक्टिविटीज बताएं। इट इंक्लूड्स कैटल रेस, कैमल एंड हॉर्स डांसिंग एंड फॉक गेम्स एंड फॉक म्यूजिक एंड सम सॉर्ट ऑफ एग्जीबिशंस। यानी कि इसके अंदर कैटल रेसेस होती हैं, कैटल एंड हॉर्स के डांसेस होते हैं, फॉक गेम्स होती हैं, फॉक म्यूजिक होता है और बहुत सारी एग्जीबिशंस का इनाकात किया जाता है। What is शंदूर पोलो फेस्टिवल फेमस फॉर? शंदूर किस वजह से मशहूर है? सो आंसर इज इट इज फेमस फॉर इट्स हाइट एंड फ्री स्टाइल पोलो। ये अपनी ऊंचाई और अपने फ्री स्टाइल पोलो की वजह से मशहूर है। रीड द गिवन पैराग्राफ। Last year, Bisma visited the Spring Festival held in Jilani Park, Lahore. She went there with her family. First, they went to fresh flower competition. She took many pictures of colorful flowers arranged in a beautiful manner. Then, they went to the food court and enjoyed delicious local food. After that, Bisma went to take rides with her elder sister. Both of them enjoyed a lot. They also bought handmade bangles and jewelry. Then they enjoyed an amazing fire show. At last, they returned home at night. The next portion is oral communication skills. Diagraph. Keep in your mind two vowel sounds joined in one syllable to form one speech sound is called a diphthong. जब दो vowel sound मिल जाते हैं और एक sound प्रोड्यूस करते हैं तो उनको diphthong कहा जाता है। Read the given diphthongs and their uses. इन diphthongs को पढ़ें और इनके इस्तेमाल को आप बताएं। AI A, AY A, AWO, again, rain, chain, ray, day, clay, claw, law, crawl. Conversation corner. Read and practice the given dialogue. डियर स्टूडेंट्स, इन डायलॉग को हम पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। हेलो राबिया, वुड यू प्लीज हेल्प मी इन मेकिंग दिस प्रेजेंटेशन? Hi, yes. Tell me what you want me to do. Actually, my computer is out of order. May I use yours? You can come in the evening. I will try to help you in searching your information. Thank you. It's so nice of you. You are welcome. Dear students, now turn to page 20. We use the given expressions to express regret. Dear students, यहाँ पे हमें कुछ expressions दिए गए हैं जो कि regret शो करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि I regret, I wish that, I shouldn't have. We use the given expressions to express likes and dislikes. जब हम अपनी पसंद या नापसंद को शो करते हैं तो हम इन expressions को इस्तेमाल करते हैं। I like, I love, I enjoy, I don't like, I dislike. We use the given expressions to respond to instructions and directions. हम instructions को और directions को respond करने के लिए इन expressions का इस्तेमाल करते हैं। For example, I will do as you told me. What is the next step? What is the next step? Then, vocabulary and grammar. Regular and irregular nouns. Read the given regular and irregular nouns. Regular nouns, we add s
और es to make regular nouns plural. Dear students, regular nouns को जब plural किया जाता है तो उसके आखिर में s या es पुट कर दिया जाता है. For example, festival, festivals, jeep, jeeps, day, days, mango, mangoes, bush, bushes. Irregular nouns do not follow one specific rule. जो irregular nouns होते हैं वो किसी खास असूल को फॉलो नहीं करते और उनकी अगली फॉर्म का पता नहीं कि हम कैसे बनाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, फुट, फीट, चाइल्ड, चिल्ड्रन, ऑक्स, ऑक्सन, माउस, माइस, मैन, मैन. राइट द प्लूरल ऑफ द गिवन सिंगुलर नाउन्स. ये जो नाउन्स दिए गए हैं इनको प्लूरल बनाते हैं. इनमें से कुछ रेगुलर हैं और कुछ इरेगुलर हैं. पार्क, पार्क्स, डिश, डिशेस, फ्लावर, फ्लावर्स, हॉर्स, हॉर्सेस, कैमल, कैमल्स, वुमेन, विमेन, टूथ, टीथ, गूज, गीज, पर्सन, पर्सनैलिटीज. Degrees of regular adjectives. Read the given degrees of regular adjectives. Dear students, adjectives हमने पढ़ा था कि जो आपको नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है उसको एडजेक्टिव कहा जाता है. यहां हम उसकी 3 डिग्रीज को पढ़ेंगे. पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव. स्मॉल, पॉजिटिव, स्मॉलर, कंपैरेटिव, स्मॉलेस्ट, सुपरलेटिव. ब्राइट, brighter, brightest. Tall, taller, tallest. Happy, happier, and happiest. Dear students, now turn to page 21. Fill in the given blanks with correct form of adjectives. सही adjective put करके हमने इन blanks को fill करना है. Today is the hottest day of the year. Mariam bought a pretty dress. My grandfather's house is larger than our house. Junaid is the bravest child of our family. This cake is sweeter than her cake. Capitalization. Read the given sentences and notice the use of capital letter. Dear students, हमें पता है कि हर प्रॉपर नाउन को कैपिटल लिखा जाता है और जब भी कोई फिक्रा शुरू किया जाता है तो हम उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल लिखते हैं. इसके अलावा आई भी हमेशा कैपिटल लिखा जाता है. उसामा लिव्स इन सिब्बी, बलोचिस्तान. उसामा का यू बड़ा, सिब्बी का एस बड़ा, बलोचिस्तान का बी बड़ा. द नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो इज हेल्ड इन लाहौर, पंजाब. दी का टी बड़ा, नेशनल का एन बड़ा, हॉर्स का एच बड़ा, कैटल का सी, शो का एस, लाहौर का एल और पंजाब का पी बड़ा. पाकिस्तानीज आर हॉस्पिटेबल पीपल. पाकिस्तानीज का पी बड़ा. अरूसा एंड फिजा आर माई बेस्ट फ्रेंड्स. अरूसा का ए और फिजा का एफ बड़ा. जश्न बहारा इज सेलिब्रेटेड इन मार्च. जश्न बहारा, जश्न का जे, बहारा का बी और मार्च का एम बड़ा. Add correct capitalization and rewrite the given sentences. Dear students, इन sentences को दोबारा लिखना है proper capitalization के साथ. अली का ए बड़ा लिखेंगे. इज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. हेड का एच बड़ा लिखेंगे. डिपार्टमेंट का डी बड़ा लिखेंगे. ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का ई बड़ा लिखेंगे. मुस्लिम सेलिब्रेट ईद उल फित्र आफ्टर द मंथ ऑफ रमदान. मुस्लिम्स का एन बड़ा लिखेंगे. सेलिब्रेट ईद का ई बड़ा लिखेंगे. फित्र का एफ बड़ा लिखेंगे. आफ्टर द मंथ ऑफ रमजान, रमजान का आर बड़ा लिखेंगे. दे आर गोइंग टू सवाद. दे का टी बड़ा लिखेंगे. सवाद का एस बड़ा लिखेंगे. माहा इज अ मेंबर ऑफ चिल्ड्रन आर्ट सोसाइटी. माहा का एम बड़ा लिखेंगे. आर्ट का ए बड़ा लिखेंगे और सोसाइटी का एस बड़ा लिखेंगे. राइटिंग. Topic sentence and supporting details. Write a paragraph on school fun fair using given topic sentence and supporting details. Also use the learned transitional devices. Dear students, हमने यहाँ पे टॉपिक सेंटेंस और सपोर्टिंग डिटेल्स देनी है जिसमें हमें एक टॉपिक दिया गया है वो है स्कूल फन फेयर. यहाँ पे आपने अपने टीचर की गाइडलाइन लेनी है और इस टॉपिक के बारे में आपने एक पूरा पैराग्राफ कंपोज करना है और उसमें टॉपिक सेंटेंस और सपोर्टिंग डिटेल्स का ख्याल रखना है. टॉपिक सेंटेंस. Fun fairs are usually a gathering of people for certain entertainment or commercial activities. Dear students, ये टॉपिक सेंटेंस है. सपोर्टिंग डिटेल 1.
Our school organized the fun fair in March, supporting detail to the students and teachers, decorated stalls of different things. ये 2 डिटेल्स उन्होंने दी हैं। इसके अलावा अगर कोई डिटेल आपके माइंड में आती है या टॉपिक सेंटेंस आपके माइंड में आता है तो आप उसको भी एड अप कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज। जी तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज को हमने हल कर लिया। अगेन मैं यही कहूंगा कि वो चीज़ें जो घर से सॉर्ट आउट करने के लिए दी जाती हैं, अपने टीचर की गाइडलाइन के साथ उन चीज़ों को अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट किया करें ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो सके। उम्मीद है आपको पूरे चैप्टर की अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं नए यूनिट के साथ अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।